Okay, so let's continue then, if nobody has any doubt. So this was how to compute the order, and now we are going to continue with the results. Right. Just yes. So before giving you the next result, let me give you an example. That now suppose you have a cycle, right? So what we can do is we can write it like 1 5 1 4 1 3 1 2. Yeah, so this is a trick, you can say, I am telling you, or a shortcut I am telling you, and you need to actually learn this technique because you want to see this, right? How you can write any given cycle. So this 1 2 3 4 5, this is just a cycle of length 5, or you can say this is a permutation which has been written in one cycle, like 5 cycle. So I am able to write it as product of two cycles. So when do we say a permutation is n cycle? Means when do we say a cycle is n cycle? If the length of the cycle is m. Means length of the cycle means the number of elements in the cycle you have to count. So on the left hand side, this is a 5 cycle, okay? But on right hand side, you can see all of these are 2 cycles. So this is additional result which we are discussing कि किसी भी लेंथ का साइकिल हो ओरिजिनली, उसको हम 2 साइकिल्स में फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं. देखो अभी तक हमें इतना पता है कि कोई भी परमुटेशन हो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स लिख सकते हैं. कौन से साइकिल? डिसजॉइंट साइकिल्स. बट वी डिड नॉट कमेंट अपॉन कि उन साइकिल्स की लेंथ क्या होगी. जो भी होगी उसका एलसीएम लेके फिर हम उस ऑर्डर ऑफ परमुटेशन निकाल सकते हैं. दैट इज अ सेपरेट थिंग. बट अब हम कह रहे हैं कि कोई भी लेंथ का साइकिल हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, एनी लेंथ साइकिल, उसको हमेशा हम 2 साइकिल्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं. नाउ दिस 2 साइकिल इज ऑल्सो हैविंग अ पर्टिकुलर नेम. This is also called transposition in many books, and even in your book they are calling it very frequently 2 cycle, but transposition is the other word for 2 cycle. Only for cycle of length 2 we have an alternate word which is transposition. So this is how you have to write. Now you can see this how I have written this. So firstly you can verify. Let's first verify कि जो हमने लिखा है ये is it how it is working. So left hand side we have this. So 1 goes to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 1. This is the meaning of this. So this is the left hand side, and now you look at right hand side. So right hand side, पहला एलिमेंट लिखा है 1 5. So this is, अब let me expand it. मुझे इसको दोबारा से permutation की फॉर्म में लिखना है. So 1 2 3 4 5. So 1 5 means 1 goes to 5, 5 goes to 1, और बाकी सभी फिक्स्ड. फिर क्या लिखा है? 1 4. So 1 goes to 4, 4 goes to 1, बाकी सभी फिक्स्ड. And then after that you have let me just actually go to other next line. इसमें पूरा नहीं आएगा, स्पेस कम है. Let's start evaluating from here, right hand side. So पहले 1 5 है, ये फिक्स्ड है. फिर है 1 4, फिर है 1 3, उसके बाद है 1 2. राइट. सो दिस इज द राइट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड को मुझे सिंप्लीफाई करना है. मींस आई एम जस्ट वैलिडेटिंग वेदर माय लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज राइट हैंड साइड. तो जब भी आपको प्रोडक्ट करना है परमुटेशंस का, सो वी नो हाउ डू वी डू दैट. वी स्टार्ट फ्रॉम द राइट. हम राइट से स्टार्ट करेंगे. सो 1, सो 1 goes to 2, 2 goes to 2, so ये 2, 2 goes to 2, so 2 goes to 2. So ultimately this is my answer. अभी मुझे 2 का इमेज फाइंड करना है, so I have to start from here. So 2 goes to 1, 1 goes to 3, 3 goes to 3, and 3 का ही इमेज देखूंगी, 3 goes to 3. So ultimately 2 goes to 3. Then
3 राइट हैंड साइड से राइट मोस्ट से स्टार्ट करेंगे. 3 goes to 3, यहाँ पे 3 goes to 1, 1 goes to 4, 4 goes to 4. So ultimately 4 is the answer. Similarly, 4 goes to 4, 4 goes to 4, 4 goes to 1, 1 goes to 5. So this is 5. And finally 5 to 5, 5 to 5, 5 to 5, 5 to 1, 5 to 1. So this is your same as left hand side, which was your 5 cycle. So ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको वैलिडेट करके दिखा दिया है. So it's easy now to see कि आपके पास देखो साइकिल था, मैंने उसको 2 साइकिल्स में कैसे ब्रेक डाउन किया. आप 1 से स्टार्ट हो जाओ, जो भी ये पहला एलिमेंट है यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, जरूरी नहीं 1 ही हो, कोई भी एलिमेंट हो सकता है. सो यू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एलिमेंट एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग इट्स ट्रांसपोजिशन 2 साइकिल फ्रॉम द राइट हैंड साइड. तो सबसे पहले जो एलिमेंट आएगा 1 5, फिर आएगा 1 4, फिर आएगा 1 3, फिर आएगा 1 2, राइट. सो 1 5, 1 4, 1 3, 1 2. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ये आप अब कितनी भी एग्जांपल पे खुद से अप्लाई करके वैलिडेट करके देख सकते हो. अब किसी भी लेंथ का साइकिल स्टार्ट करो, कोई भी एलिमेंट्स लो, जरूरी नहीं 1 2 3 4 5 सारे ही होने चाहिए. आप S6 में हो, आप एक 4 साइकिल ले लो, 3 4 5 6, राइट. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल एंड सो यू कैन वेरीफाई दैट योरसेल्फ. सपोज हम S6 में हैं, तो एक साइकिल मैंने कंसीडर किया 3 4 6. So it's a 3 cycle. So I am able to write it like 3 6 3 4. So 3 6 3 4. So आप वैलिडेट कर सकते हो इसको फिर से. जिनको प्रीवियस एग्जाम्पल में कुछ डाउट है तो ये भी क्लियर हो जाएगा. So 3 goes to 4, 4 goes to 6, 6 goes to 3 और बाकी सभी फिक्स्ड रहेंगे. So ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू. So 3 6 6 3 and 3 4 4 3. So you can see here right hand side is equal to left hand side because 1 to 1, 1 to 1. So 1 to 1, 2 to 2, 2 to 2. So 2 to 2, 3 to 4, 4 to 4. So 3 to 4, 4 to 3, 3 to 6. So 6 is here, 5 to 5, 5 to 5 is fixed. 6 to 6 and 6 to 3, 6 to 3. So you see, जो टेक्निक मैंने आपको बताई है यहाँ पे लगा के दिखाई, so it's validating. So this is a general technique you can apply anywhere, and so that is how actually you can write any length cycle into a product of transpositions as product of 2 cycles. अब ये order matter करता है, right? ये मैटर करता है. दिस ऑर्डर मैटर मीन्स किस ऑर्डर में लिखा है, ये कम्यूट नहीं करेंगे. दिस इज नॉट इक्वल टू दिस. कैन एनीबडी टेल व्हाई? Because they are not disjoint. They are not disjoint. Yeah, that is right. Because usually students को ये confusion होता है, जैसे हम 2 cycles देखते हैं हम commute कर देते हैं, वो नहीं होगा. Because we do have result for disjoint, but we don't have anything. हो सकता है किसी particular case में commute कर भी जाएं, हो सकता है, but in general they are not same. That is why ये एक लिखने का एक specific तरीका है. It's not कि आप कहीं से भी शुरू हो जाओ, आपको पहले element को pick करना है, last के साथ फिर जो जो जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो बनाना है. सो दिस इज रियली नॉट गोइंग टू बी ट्रू. ओके, सो दिस इज हाउ यू डू इट. अब हम इसको रिजल्ट में वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ रिजल्ट. अब एक और एग्जांपल ले सकते हैं, वो आप बाद में वैलिडेट कर लेना. सपोज यू हैव दिस. तो एक एक साइकिल था, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स है, एक 4 साइकिल एक 3 साइकिल है. तो पहले हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे. या सो कैन एनीबडी टेल व्हाट शुड आई राइट? 1 2 1 3 1 6. Yeah, and for this one 4 7 4 5. Yeah, 4 7 and 4 5. तो आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हो कि यही आएगा. Now so we have the theorem which is exactly this only. जो हमने एग्जांपल पे किया है, अब यही चीज इन जनरल भी ट्रू होगी. So actually it's so expressed in the form of a result. So this says that every permutation in Sn n greater than 1, obviously n greater than 1 तो है ही है, because हमें पता है it does not make sense n equals to 1 पे कोई ग्रुप नहीं होता है, सिमेट्रिक ग्रुप.
So every permutation is a product of two cycles. So यहाँ पे obviously disjoint word use नहीं है, because disjoint हो भी सकते हैं, disjoint नहीं भी हो सकते हैं, but ऐसी कोई condition नहीं है. जैसे अगर आप इनकी बात करोगे तो they are not disjoint, उनमें one जो है common आ रहा है, right? So let's just prove this. Proof भी ऐसी है जैसे हमने ये examples किए हैं, so उसको बस general form में लिखना है. Okay, so every permutation की बात कर रहे हैं, so सबसे पहले आइडेंटिटी परमुटेशन की बात करते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्रेजेंट in every group, every SN. So if you talk about identity permutation, so it can always be written like say 1 2 1 2. अब n greater than 1 है, that means अब minimum S2 में तो हो ही. S2 means minimum आपके पास दो integers, आपका finite set तो है ये 1 2. अब बड़े SN में होंगे तो भी आपके पास 1 और 2 तो होंगे. तो 1 2 से जो हम साइकिल क्रिएट कर सकते हैं, 2 साइकिल, उसको अगर हम खुद से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 into 1 2, so we will obviously get identity. या क्लियर है, क्योंकि every 2 cycle is it inverse of itself, क्योंकि आप उसको दो बार ही करोगे. सो इसमें क्या है, 1 goes to 2 2 goes to 1, इसमें है 1 goes to 2 2 goes to 1, so ultimately it will be 1 1 2 2. ये हमने पहले किया हुआ है कि किसी भी 2 साइकिल को खुद से मल्टीप्लाई करो, मींस 2 साइकिल का ऑर्डर 2 होता है, उसका स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी आती है. तो दैट मींस यस, फॉर आइडेंटिटी दिस रिजल्ट इज ट्रू. यू कैन सी आइडेंटिटी कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल. सो आइडेंटिटी के लिए तो ट्रू हो गया. सो अब हम लेते हैं लेट अल्फा नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी बी एनी परमुटेशन ऑफ एसएन. अब हम पहले वो रिजल्ट यूज करेंगे कि alpha can be written as product of disjoint cycles, जो थ्योरम 5.1 है. तो उसके अकॉर्डिंग अल्फा कैन बी रिटन लाइक a1 a2 ak b1 b2 bm एंड सो ऑन, जितने भी हो सकते हैं c1 c2, बिकॉज जितने फाइनाइट ही होंगे तो जितनी भी उसकी क्लासिफिकेशन हो सकती है. तो ये AIs BIs CIs ये सब डिफरेंट है, क्योंकि ये सब डिसजॉइंट साइकिल्स हैं. तो मैंने जनरल लेने के लिए उनकी सबकी लेंथ भी डिफरेंट ली है. तो दिस इज हाउ अल्फा कैन बी रिटन. ऑलरेडी वी डू दैट. अब हम वही बात कर रहे हैं कि जो A1 A2 AK, इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है A1 AK A1 AK minus 1 A1 AK minus 2 and so on up to A1 A2. जो ट्रिक अभी हमने ऊपर एग्जांपल से वेरीफाई की है, तो यही उसी को जनरलाइज किया है. जैसे मैंने आपको सिखाया है कि 2 साइकिल्स में कैसे लिखना है, तो पहले फर्स्ट हैज टू बी कंबाइंड विद द लास्ट. अब फर्स्ट ही सबके साथ कंबाइंड होगा, देन वो AK minus 1 से कंबाइंड होगा, उससे प्रीवियस एलिमेंट जो यहाँ पे होगा, उसके बाद एंड सो ऑन प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस, और लास्ट में A2 के साथ कंबाइन होगा. तो जितने भी ये बनेंगे ये सारे 2 साइकिल्स बनेंगे. अब थ्योरम प्रूव करने के लिए अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो, मतलब एक तो देखो ठीक है कि हमने एग्जांपल में तो देख लिया, इफ यू वांट टू रियली प्रूव इट, वेरीफाई इट, सो व्हाट यू कैन डू, आप इसको इंडक्शन से प्रूव कर सकते हो. यू कैन प्रूव बाय इंडक्शन कि इफ लेट्स टेक k इज इक्वल टू 2, अगर तो k है ही 2 मींस दो ही एलिमेंट्स हैं, सो इट्स ऑलरेडी अ 2 cycle, right? And if k is 3, so then it is A1 A2 A3. तो 3 के लिए आप वेरीफाई करके दिखा दो कि ये होगा. अब वेरीफाई करने के लिए आपको, जैसे परमुटेशन में मैंने लिखा था, अब A1 goes to A3 A3 goes to A1, बाकी सब फिक्स्ड है, वो मान के आप इसको इवेलुएट कर सकते हो और शो कर सकते हो. मीन्स वो ट्रिवियल ही होगा, बस आपको सिर्फ उसको लिखना है. फिर आप k minus 1 के लिए ज्यूम कर लोगे और उसको प्रूफ कर दोगे. सो इफ यू वांट टू ट्राई दैट प्रूफ बाय इंडक्शन, यू कैन ट्राई वेरी इजीली, यू विल बी एबल टू डू दैट. But otherwise you can just say that this is true, like this is an observation, this is true, अगर आप डिटेल्ड प्रूफ नहीं करना चाहते हो तो. Is it fine? Is it okay with everybody that why this is going to be true? I've already shown you examples for this.
एंड सिमिलरली आप इसके लिए कर सकते हो, इसके लिए भी सिमिलरली जो B1 B2 BM होगा दैट विल बी B1 BM B1 BM minus 1 B1 B2, so that is also a product of two cycles and so on. C1 C2 CR के लिए भी आप लिख सकते हो C1 C2 CR is C1 CR C1 CR minus 1 C1 C2, so it implies alpha is a product of two cycles, hence proved. Kind of proof भी इसका एक ट्रिवियल चीज ही है, उसको जस्ट हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. राइट. अब एक और रिजल्ट है, वो भी मैं आपको पहले एग्जांपल से समझा देती हूँ क्योंकि उसका प्रूफ हम नहीं करेंगे, बट आई कैन शो यू विद एग्जांपल कि ये जो टू साइकिल रिप्रेजेंटेशन हम बात कर रहे हैं, टू साइकिल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी परमुटेशन, दिस इज नॉट यूनिक. ये यूनिक नहीं है. हम इससे अलावा भी, ये तो एक टेक्निक आपको सिखा दी विच इज ऑलवेज गोइंग टू वर्क, और हमें एक ही याद रखनी है बिकॉज हमें यहाँ पे वी आर नॉट हियर टू एक्सपेरिमेंट कि कौन कौन से तरीके या हम वो सारे तरीके नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर हम कोई ऐसा एम नहीं कर रहे हैं कि सारे सभी तरह की उसकी टू साइकिल रिप्रेजेंटेशन लिखो. हमें एक ही लिखनी आनी चाहिए. बट विद दिस एग्जांपल आई विल जस्ट शो यू कि एक से ज्यादा तरीके भी हो सकते हैं. राइट. सो जैसे आप ये देखो 1 2 3 4 5, so this can also be written like 5 4 5 3 5 2 5 1. इसको आप खुद से वेरीफाई कर सकते हो. मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू शो दिस बिकॉज अभी आपको ये कैलकुलेशन करना आना चाहिए. आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू कैन वेरीफाई इट योरसेल्फ that this is what it is going to happen. So this is one thing, and there is another also. 1 2 3 4 5, so this is 5 4 5 2 2 1 2 5 2 3 1 3. So basically it's playing with the numbers कि आपको अल्टीमेटली उसको अपनी इमेज तक पहुंचाना है, तो उसको घुमा के लेके जाओ या बीच में ब्रेक कर दो. समझ रहे हो ना कि आपको अल्टीमेटली इसमें देखो, इसमें अल्टीमेटली आपको 3 goes to 4 होना चाहिए इस साइकिल के अकॉर्डिंग. सो यू कैन क्रिएट मोर देन वन कॉम्बिनेशन इन विच 3 कैन गो टू 4. अब 3 to 2 to 2 to 4 भी जा सकते हो, 3 to 2 to 2 to 5 to 5 to 4 भी जा सकते हो. अल्टीमेटली आप 4 तक पहुंच ही जाओगे. Are you getting this point? So आपको इस साइकिल की वैलिडेशन करनी है, तो you can do that in multiple ways. So ये वेरीफाई कर सकते हो. Means ultimately I am just giving you this example to show you कि एक से ज्यादा भी ट्रांसपोजिशन रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं किसी भी परम्यूटेशन की. राइट. अब हम इसके लिए एक रिजल्ट करेंगे which tells you कि अगर एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेशंस एग्जिस्ट करती हैं बट उनका जो नंबर है उसके ऊपर उसका जो आंसर है वो ऑलवेज गोइंग टू बी इवन और ऑड. मींस हाउ मेनी आर दे? दीज आर 4. सो द आंसर इज, इफ यू काउंट देम, द आंसर इज इवन. मतलब अभी आप नंबर नहीं काउंट कर रहे हैं बट सिर्फ नंबर का कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं. जो आंसर आया वो इवन है कि ऑड है. so, कितनी कितनी ट्रांसपोजिशंस हैं? 1 2 3 4. सो दैट्स अ इवन नंबर. यहाँ पे काउंट करोगे सो 1 2 3 4 5 6. सो दैट्स आल्सो एन इवन नंबर. सो दैट मीन्स अगर एक बारी इवन रिप्रेजेंटेशन मिल गई तो उसकी अगर कोई और रिप्रेजेंटेशन भी होगी तो उसमें भी इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस ही होंगे. इसका रीजन आपको पता चल जाएगा अभी with the next result that why this is going to happen. Okay, and you can also observe one thing कि अगर 3 साइकिल था, अगर एक 3 साइकिल है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 3 1 2. सो इसमें कितनी परमुटेशंस हैं? कितनी 2 साइकिल्स हैं? इवन है. एंड अगर एक 4 साइकिल होगा सो इट इज 1 4 1 3 1 2. सो इसमें ऑड नंबर ऑफ 2 साइकिल्स हैं. So this gives us the definition actually: even permutation, odd permutation.
I'll give you that definition after the result exactly, क्योंकि पहले हम रिजल्ट प्रूव कर लेते हैं which tells us कि वो नंबर हमेशा सेम रहेगा. ठीक है, अब हमें डिसाइड करना है कि एक गिवन परमुटेशन इवन परमुटेशन है कि ऑड परमुटेशन है. तो हमें क्या करना है, उसकी 2 साइकिल रिप्रेजेंटेशन पे जाना है और काउंट करना है. अगर तो 2 साइकिल्स का नंबर इवन है सो इट्स एन इवन परमुटेशन. अगर 2 साइकिल्स का नंबर ऑड है सो दैट इज एन ऑड परमुटेशन. और क्योंकि हमने कहा था कि एक से ज्यादा भी रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट कर सकती है, तो वो उसमें श्योरिटी आएगी कि ठीक है, अगर एक से ज्यादा भी एग्जिस्ट कर सकती हैं बट इवन इवन ही रहेगा. तो दैट मीन्स एक परमुटेशन ऐसा नहीं होएगा कि एक रिप्रेजेंटेशन में वो इवन परमुटेशन है और किसी और रिप्रेजेंटेशन में उसका आंसर ऑड आ रहा है. सो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. ओनली देन यू कैन गिव अ नेम टू इट, राइट. उसकी कैरेक्टरिस्टिक बदलने नहीं वाली है. अगर वो एक बार इवन है तो वो हर बार इवन ही आंसर आएगा. ओके, सो लेट मी गिव यू फर्स्ट अ लेमा. इसका हम प्रूफ नहीं करेंगे. आई बी जस्ट यूजिंग दिस रिजल्ट इन द अनदर थ्योरम, बट द रिजल्ट इज दिस. इफ ई हम आइडेंटिटी परमुटेशन के लिए डिनोट कर रहे हैं. सो इफ ई इज बीटा 1, बीटा 2, बीटा आर, where these beta i's जो हैं ये सारे क्या हैं, ट्रांसपोजिशंस हैं, 2 साइकिल्स हैं, then r is even. कि आइडेंटिटी को जब भी हम 2 साइकिल्स के प्रोडक्ट में लिख रहे हैं तो r is even means उनका नंबर ऑफ 2 साइकिल्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी even. That means indirectly हम क्या कह रहे हैं, in other words what we are saying that identity permutation is an even permutation. उसकी जो 2 साइकिल डिकम्पोजिशन होगी, रिप्रेजेंटेशन होगी, उसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स आएंगे. एंड इसका प्रूफ नहीं कर रहे हैं बट मैं आपको इंट्यूटिवली समझा सकती हूँ दैट हाउ दिस इज सो. एक तो मैंने आपको अभी समझाया था ऊपर वाले प्रूफ में कि आइडेंटिटी को हम हमेशा ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज हम SN की बात कर रहे हैं तो मिनिमम 2 एलिमेंट्स हमारे पास हैं और हर SN में 1 और 2 तो है ही है हमारे पास. तो वी कैन ऑलवेज राइट लाइक दिस, आइडेंटिटी को 1 2 into 1 2, इट विल गिव यू आइडेंटिटी. 1 2 के अलावा कोई और भी यूज कर सकते हो, 1 4 1 4, 2 3 2 3. किसी भी साइकिल को जस्ट 2 साइकिल को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट आइडेंटिटी. डिपेंडिंग अपॉन जितने एलिमेंट्स हैं वो उतनी क्रिएशंस ही कर सकते हो, राइट. अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 2 1 2 3 4 3 4. आई कैन डू दैट क्योंकि ये भी एक्चुअल आइडेंटिटी है, ये भी एक्चुअल में आइडेंटिटी है, तो ओवरऑल आइडेंटिटी बन जाएगा. बट यू सी मेरे पास ये रिप्रेजेंटेशन और ये रिप्रेजेंटेशन, इनको मैं 2 अलग रिप्रेजेंटेशन बोलूंगी. दैट मीन्स जितनी भी रिप्रेजेंटेशन होंगी उनमें हमेशा आर मीन्स ये जो आर है, ये जो काउंटिंग में होंगे 2 साइकिल्स, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी इवन. और ये होना भी चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी क्या करता है, व्हाट इज आइडेंटिटी परमुटेशन एक्चुअली डूइंग, it's always bringing back to the original element. तो 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3. अब किसी भी चीज को it's like two step thing. अब किसी भी एलिमेंट को आप किसी दूसरे एलिमेंट पे मैप कर दो, उसको दोबारा से आपको ओरिजिनल एलिमेंट पे लेके आना है. सो यू कैन डू इट इन 2 steps, 1 to 5, 5 to 1, 1 to 6, 6 to 1, or you can do it like 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1. Means you can always do it in even number of steps, क्योंकि एक बार आप आगे जाओगे तो दूसरी बार आपको पीछे आना ही पड़ेगा, right? So you can do it in always even number of steps. That is why you always going to have even permutations. Means जो इफेक्ट एक डायरेक्शन में लिया है उसको नलिफाई करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करने के लिए, क्रॉस आउट करने के लिए, क्योंकि आपको वापस ओरिजिनल उस पे जाना है. So that is why it always going to take even number of 2 cycles to reach towards the identity. तो दिस एन इंट्यूटिव आइडिया, इट हैज अ प्रूफ. आप पढ़ना चाहो तो बुक से इसका प्रूफ पढ़ सकते हो. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट प्रूफ, इट इज जस्ट आई एम स्किपिंग इट दैट ओके नॉट एवरीथिंग वी कैन डू प्रूफ फॉर. आई एम जस्ट यूजिंग दिस इन नेक्स्ट theorem. So is the result of this lemma clear to everybody? It simply says identity permutation is an even permutation. Is it okay? So the next result says if a permutation alpha
can be expressed as a product of even, ब्रैकेट में लिखा है odd, इवन नंबर ऑफ टू साइकिल्स। जब भी हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं तो उसका मतलब होता है समझने का कि जो स्टेटमेंट इवन के लिए एक स्टेटमेंट बनेगी, फिर उस सेम स्टेटमेंट में आप ऑड वर्ड फिट कर दोगे तो वही स्टेटमेंट बनेगी। सो इफ परमुटेशन अल्फा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टू साइकिल्स, देन एवरी decomposition, मैं representation word use कर रही थी, but actually more precise word is decomposition. Every decomposition of alpha into a product of two cycles have even bracket में odd number, or product of, let me write alpha into, sorry, let me rewrite it, did not make sense. Then every decomposition of alpha into product of two cycles should, और should की जगह word होना चाहिए must contain even number of two cycle. This is the same thing जो मैंने already आपको बता दिया कि अगर एक representation में even number है तो किसी और representation में भी number even ही होगा. Now we are going to prove this one. और odd के लिए भी same है. So if you have, so suppose कोई परमुटेशन है अल्फा, उसकी दो रिप्रेजेंटेशन है, सपोज उसकी एक रिप्रेजेंटेशन है बीटा 1 बीटा 2 बीटा के, और कोई और रिप्रेजेंटेशन है गामा 1 गामा 2 गामा से जे, राइट, वेयर दीज बीटा आईज आर टू साइकिल्स एंड दिस गामा एस आर आल्सो, ये सारे क्या है, टू साइकिल्स हैं, फॉर ऑल आई एंड फॉर ऑल एस, I is 1 to k, S is 1 to j, right? So एक ही अल्फा है, मतलब उसकी दो representations है. Now we can take inverses, right? अब ये दो equal हैं, so what I can write is beta 1 beta 2 beta k. So if I multiply by inverse on both the sides, gamma 1 inverse, gamma 2 inverse, gamma j inverse. So is it means sorry, it should be the opposite, one second, because जब हम inverse लेंगे तो उल्टा order होगा. So beta 1 beta 2 beta k into gamma 1 gamma 2 gamma j का inverse should be identity. ये तो clear है. अगर हम alpha is equal to beta लिख रहे हैं, so that means alpha into beta inverse is identity. So basically वो कैसे आ रहा है, post multiply on both the sides with beta inverse. इसको आप अगर फर्दर ब्रेक डाउन करोगे, इनवर्स ओपन अप करोगे, या व्हाट शुड आई राइट, व्हाट शुड आई राइट, अब इनवर्स को कैसे एक्सपैंड करेंगे, गामा जे इनवर्स गामा जे माइनस 1 इनवर्स गामा 2 इनवर्स गामा 1 इनवर्स, क्योंकि ए बी इनवर्सेस बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, सो ऑर्डर बदल जाएगा. सो ये ऐसे आ जाएंगे एलिमेंट्स, एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव आइडेंटिटी, राइट? So can you count how many of them are there? How many are they? Yes. कितनी प्रोडक्ट, कितने टू साइकिल्स हैं? और ओके, एक और स्टेप कर देती हूँ, बीटा 1 बीटा 2 बीटा के गामा जे माइनस 1 गामा 2 गामा 1 इज आइडेंटिटी. ये कैसे आया, कैन एनीबॉडी टेल? एवरी टू साइकिल, ये सारे टू साइकिल्स हैं, एवरी टू साइकिल इज इट्स ओन इनवर्स. 3 साइकिल के लिए नहीं होता है रिजल्ट, 4 के लिए नहीं होता है, बट 2 साइकिल इज इट्स ओन इनवर्स, तो आई कैन स्किप द इनवर्सेस. अब नाउ यू जस्ट काउंट हाउ मेनी आर देयर इन टोटल. j plus k is equal to, yes, it should be even. Why it should be even? Because according to lemma, identity is an even permutation. तो that means identity की अगर कोई two cycle representation exist करेगी तो उसमें the total number of cycles should be
2 cycles should be even. So ये total कितने cycles हैं? J plus K. So J plus K should be even. Is it clear up till this point? Yes, ma'am. Now, what is the interpretation of J plus K is even? अगर कोई दो integers हैं, उन दोनों का sum even है. So what can I imply about them? Either both of them are odd or both of them are even. एक odd और एक even तो नहीं हो सकता है, क्योंकि odd plus even we know odd plus even will be odd, right? So even plus even will be even, or odd plus odd will be even. So that means अगर आपको final answer even चाहिए, जो हमें required है, so either it will be coming from odd plus odd or it will be coming from even plus even. It implies either both J and K are even or both J and K are odd. So that means जो आपने अल्फा की ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन लिखी थी, बीटा 1 बीटा 2 बीटा k गामा 1 गामा 2 गामा j, तो अगर वो k इज एन ऑड नंबर तो j इज आल्सो एन ऑड नंबर, तो दैट मींस वो दोनों ऑड नंबर ऑफ साइकिल्स होंगे, और अगर k इवन नंबर है तो j भी इवन नंबर होगा, तो दैट मींस वो इवन नंबर ऑफ साइकिल्स होंगे. तो ये हमें प्रूव करना था कि नंबर ऑफ साइकिल्स अलग रिप्रेजेंटेशन चाहे हो, बट इवन ऑड की पैरिटी जो है वो प्रिजर्व रहती है. So this proves our result. So with this we can now give a definition that what do you mean by even permutation. Okay, so if the number of two cycles in a permutations उस permutation की जो हमने decomposition की है in two cycles, if that number is even, then that permutation is called an even permutation, otherwise it is called odd permutation. So I hope that is clear to everybody. Otherwise odd permutation, मतलब वो definition में cover हो गया. Is it clear? The meaning of even and odd permutation is clear to everybody? One second. Yes, so can you tell me what is a two cycle? Is it an even permutation or odd permutation? A two cycle is an even permutation or an odd permutation? A single two cycle is an odd permutation. Yeah, this is odd permutation because वो एक ही है, आपको टू साइकिल्स की को काउंट करना है. अब टू साइकिल है, वो तो खुद ही है, और ये कितने हैं, कितने टू साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हो आप एक टू साइकिल को. itself is an odd number, so it's an odd permutation. Similarly, थ्री साइकिल, ये मैंने ऊपर आपको करके दिखाया था, थ्री साइकिल विल बी 1 3 1 2, उसको हमेशा ऐसे लिख सकते हो. तो थ्री साइकिल इज ऑलवेज गोइंग टू बी इवन परमुटेशन, क्योंकि उसकी डिकम्पोजिशन में दो साइकिल्स आए हैं, मींस द नंबर ऑफ टू साइकिल्स इज 2 and 2 is an even number. So you can in general say कि m साइकिल जो होगा वो ऑड परमुटेशन होगा, मतलब उल्टा चल रहा है ना. थ्री साइकिल है, अब थ्री खुद क्या है, इवन है, सॉरी थ्री ऑड है, तो परमुटेशन इज इवन, मतलब जो इसकी लेंथ है साइकिल की उसके उल्टा होगा. सो एम साइकिल इज ऑड परमुटेशन इफ m is even, and this is even permutation if m is odd.
right? So if I randomly ask you, what is a 39 cycle permutation? 39 cycle permutation, is it going to be odd permutation or a even permutation? Even. Even, because 39 is odd, right? तो उसकी आप जो representation करोगे उसमें आपको वो मिलेगा. Okay, this is one thing. And then you have a result about even permutation. So this is basically your next theorem. It tells that even permutations form a group. आपका ओरिजिनल ग्रुप है SN, अब उसमें हर तरह की परमुटेशन है, इवन भी है ऑड भी है, दोनों तरह की परमुटेशंस है SN जो पूरा ग्रुप है, राइट? अब उसमें से अगर आप इवन 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 वाली इकट्ठी कर लो, उसका एक सेट बना दो, तो हम वो कह रहे हैं कि वो अलग से एक ग्रुप बनाएगा एंड इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ सब ग्रुप. उसका सब ग्रुप ही होगा क्योंकि मेन ग्रुप में से ही लिया है आपने, तो वो अपना एक ग्रुप बनाएगा. ऑपरेशन ग्रुप का वही होता है सब ग्रुप का जो मेन ग्रुप का होता है. सो नीड नॉट टू मेंशन कौन सा ऑपरेशन. सो दैट्स द सेम ऑपरेशन द अंडर द ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन. सो दिस इज समथिंग वी हैव टू प्रूव that the set of even permutations in SN is a subgroup of SN, right? अब सबग्रुप प्रूव करने के लिए हम कैसे प्रूव करते हैं? एक तो टू स्टेप यूज कर सकते हो, वन स्टेप यूज कर सकते हो, बट इफ यू रिमेम्बर देयर वाज अ रिजल्ट जब हमने सब ग्रुप टेस्ट किए थे कि अगर हम फाइनाइट में हैं, इफ वी आर इन फाइनाइट सेट्स, देन anybody remember the result? Finite sets क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं. you just need closure. So that is the benefit of that result कि आपको सिर्फ क्लोजर वेरीफाई करना है. मींस आप खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए चारों प्रॉपर्टीज वेरीफाई कर सकते हो. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स वो होगा, बट फाइनाइट जब आप फाइनाइट उसमें बात करते हो तो क्लोजर से वो हो जाएगा. तो क्लोजर प्रूव करना आसान है. तो दैट मीन्स अगर अल्फा और बीटा आर टू even permutations, तो अगर आपको क्या शो करना है, अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो इवन परमुटेशन. मीन्स उनका जो कंपोजिशन है या प्रोडक्ट कह लो वो भी इवन है. सो ये इजी है प्रूव करना. अल्फा बी बीटा वन बीटा टू बीटा के एंड सॉरी बीटा तो ले ही लिया है, उसको कुछ और लिख लेते हैं. Let alpha be alpha 1 alpha 2 alpha k and let beta be beta 1 beta 2 beta m, where k is even number is important, right? m is even. तो ये सारे है क्या, बीटा 1 बीटा 2 बीटा m और अल्फा 1, these all alpha i's and beta j's, they are two cycles. तो अल्फा बीटा कंबाइन करके क्या बनेगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k beta 1 beta 2 beta m, because that is how you are going to multiply. So what is the total number of two cycles here? K plus m, which is now obviously going to be even because k is even and m is also even, hence proved. क्लोजर ही वेरीफाई करना था क्योंकि अब फाइनाइट ग्रुप में हो तो क्लोजर से ही हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन इज इवन परमुटेशन, देयरफॉर इट इज गोइंग टू हैपन, राइट? और वी कॉल, इसका एक पर्टिकुलर नाम है इस ग्रुप का, दिस इज नोन एज alternating group, yeah, alternating group of degree n. This is known as AN, right? So this is actually a subgroup of SN and it contains even permutations. Obviously identity even permutation होता है तो identity तो है ही है उसमें, तभी वो ग्रुप बना रहा है. So AN contains all even permutations, right? एक हमारा नेक्स्ट रिजल्ट बचा है, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे उसका प्रूफ, which is about order of AN, कि एक्चुअली उसमें n फैक्टोरियल बाय 2 परमुटेशंस होंगे, क्योंकि आपको
पूरे ग्रुप का ऑर्डर पता है विच इज n फैक्टोरियल, द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज n फैक्टोरियल। तो अब ये नेक्स्ट रिजल्ट प्रूव करेगा हमारा कि बिल्कुल हाफ ऑफ इट, एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट आर गोइंग टू बी इवन। तो ऑब्वियसली जो बाकी हाफ बचेगा दे आर गोइंग टू बी ऑड। So there is never a permutation like which is neither even nor odd, because वो number ही count करना है, every number is having a characteristic कि या वो even आएगा या odd आएगा। So exactly half of the permutations are going to be even. So order of this an is going to be n factorial by 2. Okay, so we'll prove it next time, because आज time कम है अभी। So I can quickly just ask you a question. So what about odd permutations? Just please raise your hands. Don't answer directly. Will the set of odd permutations form a group or not? Yes, Vanshika. Ma'am, in that case, it won't, because odd plus odd will be even only. Yeah, so you can say closure will not be satisfied. Satisfied. Product of two or the composition of two odd permutations becomes a even permutation. So Even closure ही नहीं हुआ है तो और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है. Yeah, that's right. So odd permutations will never form a group. That is why उसकी कभी बात नहीं होती है, क्योंकि वो group है ही नहीं है. So can anybody give me another reason? ये तो एक reason हो गया, closure नहीं है. Another reason. Identity is even permutation, so it will exist in the alternating group. It will not Yeah, belong to the odd permutations. Yeah, that is also true. Okay, so because actually this was one of the specific questions in your book, that you have to give two reasons why the odd permutations do not form a group. So the one is the closure does not hold, and another is identity is not there. So obviously group ना बनाने के लिए एक reason ही sufficient है, but it is just sometimes we want to have the more and more information about anything. तो identity भी नहीं exist करेगा उसमें for odd permutations, so it will not form a group. So this is the last result basically of this chapter, which will take up next time. Order of an is n factorial by 2, और बाकी जो related questions होंगे so वो भी हम discuss करेंगे. So that will complete this chapter, and tomorrow we will meet for the tutorial. I have already uploaded the sheet for the cyclic group chapter, so I just hope you have tried all the questions. So I'll take your doubts tomorrow in the tutorial class. That's all for today. Yeah, thank you.